Hello students, welcome back to my channel. This is Asma Babwani. Today we will be studying Grade 8 English NCERT book Chapter 3 Glimpses of the Past. Students, this third chapter of the book Honeydew Glimpses of the Past is from Our Freedom Movement by S.D. Sawant. Students, glimpses means एक छोटी झलक. Okay, this is not a detail about समथिंग. देर इज जस्ट अ ग्लिम्स, एक झलक है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की. देर इज अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल, सैक्रिफाइस ऑफ द मार्टर्स. ओके, मैनी पीपल डोंट नो अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ जस्ट अ ग्लिम्स. ये एक झलक है 1857 रिवोल्ट की कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था, व्हाट वर द कंडीशंस, व्हाट वर द सिचुएशंस के विच लेड टू दिस रिवोल्ट टू स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Students, the revolt of 1857 was the first revolt of Indian independence. In the book, there are pictorial representation with talking cloud of the history of our country from 1757 to 1857. What conditions led to this revolt of 1857? This we will study in the chapter. Number 1. The martyrs. Students, this chapter is divided into 9 parts. First, we will study the first part. The heading of this part is the martyrs. Okay. Meaning of martyrs is शहीद, जिन लोगों ने अपनी लाइफ अपनी कंट्री के लिए दे दी. द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अ कंट्री. Okay. And here in this picture, at a function in Delhi is written. Here there is a picture of a function in Delhi. You can see in the picture there is the first person is Lata Mangeshkar who is singing a song. The second person is Jawaharlal Nehru. The third person sitting in yellow and white is Lal Bahadur Shastri, and Indira Gandhi ji is sitting. And in this function, Lata Mangeshkar ji, who is a renowned singer of our country, she is singing a song, "Oh my countrymen." Okay, the translation of this line is, "ए मेरे वतन के लोगों, let your eyes fill with tears." ज़रा आँख में भर लो पानी. As you recall the sacrifices of जो शहीद हुए हैं उनकी, India's martyrs, ज़रा याद करो कुर्बानी. Okay. Students, this is beginning which shows us the sacrifice of the countrymen, and this song is dedicated to martyrs. In the same picture below, there are pictures of the martyrs of our freedom movement. You can see Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. So all these people are the martyrs who gave up their life for the sake of our country. Students, this is just the beginning which shows us the sacrifice of the countrymen. This song is dedicated to the martyrs. ये song इस picture में इसलिए बताया गया है because it will show us why this function was held at Delhi after the freedom movement. Okay, now we will study about the revolt of 1857, the reasons which led to the revolt. The second picture on page number 37, it is written that the company's conquest 1757 to 1849. Students, the word company is the East India Company and the word conquest it means कब्जा कर लेना. ओके, इंडिया पे जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया था. इट कॉन्क्वेस्ट मीन्स दैट दे आर डोमिनेंस. ओके, with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. Okay. Students, can you see the yellow portion in the map? The yellow portion represents Indian kings or the Indian princes, and the pink color refers to the British territory in 1765. This is a picture of 1765 India when the Indian princes were ruling. The yellow part shows the rulers of India and the pink part shows the ब्रिटिश रूलर्स. वो येलो जो पिंक पार्ट है उस पर ब्रिटिशर्स की टेरिटरी थी. दे वर रूलिंग ऑन दोज पिंक पार्ट. At the end of this chapter, this map will consequently it will change. It will completely be opposite. Okay.
The next picture on this page is Indian princess was short-sighted. That upstart Raja Ba called the English merchants. They will help me to defeat him. Here the word upstart means a new competitor. Okay. So here there is a king who is talking to his courtier and he is telling, okay, go and call the English merchant. They have their superior weapon and they will help me to defeat my defeat my enemy. मेरे साथ जो इंडियन दूसरा किंग है, जो मेरा एनिमी है, उसे डिफीट करने के लिए मुझे इंग्लिशमैन को उनकी हेल्प की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज दे हैव सुपीरियर वेपन. Students, the Britishers had superior weapons. They had arms, ammunitions. They had a lot of weapons. Their witty nature, their cleverness, उनकी जो tricks थी, cleverness थी, and the ways to take control of over India. जो जिस तरीके से उन लोगों ने इंडिया पे कंट्रोल किया था, all these are a kind of a superior weapon which they used to rule over the India. Students, here it is written Indian princess was short-sighted. Short-sighted means those people who just think about the temporary outcomes, and far-sighted people, they think about the future outcomes. At that time, Indian princess was short-sighted. They only thought about immediate benefits and ignored the long-term consequences they had to face. Okay, so they decided to take help from the English merchants so that they could take the help of the English merchants and defeat their rivals, their enemies. They did not thought that the English merchants can also overpower them. The people had no peace due to such constant fights. Due to such fights again and again between different kings in India, the people had no peace. लोगों की लाइफ में शांति नहीं थी. Every now and then one or the other fight was going on. Now with the third picture, the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. So as I said, जो Indian princes थे, they took help of the English people, they took help of the East India Company to overthrow their rivals, to overpower their rivals. But on the contrary, the East India Company, it overthrew the princes whom they themselves helped. Okay, अगर कोई फर्स्ट किंग है जिसको सेकेंड किंग को अपने राइवल को हराना था, तो फर्स्ट किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ली. दे हैड अ वॉर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंस. ओके, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स. और सेकेंड किंग को हराने के बाद, फर्स्ट किंग के जीतने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट किंग के ऊपर भी ओवर पावर करना चालू कर दिया. वो उसका किंगडम छीन लिया उससे, वो किंग से वो किंगडम को छीन लिया. ओके, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन किंग्स को हेल्प भी किया और उन लोग के किंगडम्स अपने कब्जे में लेते भी गए. Next picture is a far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Now the Indian kings did not have unity, so Britishers took the advantage and they started ruling on one or the other kingdom. Now about the Tipu Sultan. Among these rulers, the ruler of Mysore, Tipu Sultan, who was also known as Tiger of Mysore, he understood the policy of the Britishers and he fought against them till his last moment. टीपू सुल्तान जो मैसूर के रूलर थे, उनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स की क्या चाल है, उनकी विटीनेस समझ में आ गई थी. बट बाकी सारे इंडियन प्रिंसेस को ये समझ में नहीं आया कि ब्रिटिशर्स है वो हमें ओवर पावर कर लेंगे, हमारे जो किंगडम है उसे ले लेंगे हमसे. ये बाकी सारे किंग को नहीं समझ में आएगा बिकॉज दे वर शॉर्ट साइडेड. बट टीपू सुल्तान ही वॉज फार साइडेड. उनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स की ये गंदी चाल है, ये उन लोग की ये उन लोग का विटी नेचर है. Now students, going to the fifth picture, how did Indians react to this conquest? Okay, अभी इंडिया के लोग, ये जो दो situations हुई उसमें इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया. There were two categories of Indian people. इंडियन पीपल भी दो तरीके के, दो कैटेगरी के लोग थे. फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे जो क्या सोचते थे, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम. सी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे वो लोग क्या सोच रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है उनको गॉड ने सेंड किया है, उनकी और हमारा नसीब, हमारी डेस्टिनी एक ही है, हमारे अच्छे के लिए उनको गॉड ने भेजा है. उनके आने से अभी पीस आ गया है, अभी कोई लूटिंग नहीं होगी, कोई फाइटिंग नहीं होगी, कुछ भी हमारी कंट्री में नहीं होगा. दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल हु इज़ थिंकिंग लाइक दिस.
नाउ देयर इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ द पीपल हु इज थिंकिंग ऑपोजिट. वो क्या सोचते हैं कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डी थ्रोन आर किंग्स. ओके, वो क्या सोचते हैं कि जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे किंग को किल कर दिया, थ्रोन पे से उतार दिया, अभी वो रूल कर रहे हैं हम पे. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड. ये लोग क्या सोच रहे थे कि कुछ कुछ किंग्स ऑफकोर्स अच्छे नहीं थे बट एटलीस्ट वो हमारे लैंड के थे. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. लेकिन अब हम फॉरेनर्स के, ये वाइट लोगों के, हम क्या हो गए हैं, स्लेव्स हो गए हैं, उनके नौकर हो गए हैं. वो जैसा बोलेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा. और जो हमारे किंग्स थे वो हमारे लैंड के थे, कैसे भी थे बट वो हमारे लैंड के थे, हमारी कंट्री के थे. बट दीज इंग्लिश दे आर नॉट फ्रॉम आवर लैंड. वो हमारे लैंड के नहीं है, वो हमारी कंट्री के नहीं है. Moving ahead to page number 38, the third part, British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. Students, different religious leaders, they preached and practiced some religious norms and few superstitions also, like untouchability, child marriage. Okay, जैसे कि कोई नीची जात का है, उसको अपने आसपास बैठने नहीं देते थे, उनको अपने घर की चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ टच करते थे तो उसको, ये हाई कैटेगरी के लोग टच नहीं करते थे. चाइल्ड मैरिज, बच्चों की छोटी छोटी उम्र में मैरिज करा देते थे. स्पेशली गर्ल्स वर कंसिडर्ड एज रीज़न ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड. उनको ऐसा लगता था कि वुमेंस है, उनकी ही वजह से पूरी दुनिया में जो भी मिजरी है, जो भी सफरिंग है, वो उनकी ही वजह से है. एंड वुमेंस डिड नॉट गेट एनी वैल्यू. उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी तभी. एंड दे वर जस्ट मेड फॉर किचन एंड डू हाउस होल्ड कोर्स. एनीवन क्रॉसिंग सी लूजेज हिज रिलीजन. उनका मानना था कि अगर तुमने दरिया को, सी को क्रॉस कर लिया तो तुमने तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा धर्म खो दिया. इन दिस वे द रिलीजियस लीडर्स, दे अ काइंड ऑफ, दे यूज्ड टू थ्रेटन पीपल. वो लोगों को एक तरह से डराते थे रिलीजन के नाम पे. The third picture shows the truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. Scorned means mock. उनका मजाक उड़ाते थे Britishers. The natives are worthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. Okay. सो वॉट हैपन्स इन द थर्ड पिक्चर, कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंडियन किंग्स की, इंडियंस का मजाक उड़ाना चालू कर दिया. उनको पता चल गया कि इन लोगों के बीच में यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है और ये लोग सिर्फ हम पे विश्वास करेंगे और इंडियंस एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे. सो व्हाट हैपन कि ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड ओवर पावरिंग इंडियन किंग्स. उन लोगों ने एक तरह से किंग्स का भरोसा हासिल किया कि जो नेटिव्स है वो तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं है, बट आई एम केपेबल ऑफ ट्रस्ट. आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं ईमानदार हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी. लाइक दैट उन लोगों ने किंग का भरोसा हासिल किया. ओके. बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स. स्टूडेंट्स, पहले तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड डिवाइडिंग इंडियंस बाय टेलिंग कि तुम्हारे नेबर्स है वो ऑनेस्ट नहीं है और हम ऑनेस्ट है. ठीक है, पहले तो डिवाइड करना चालू किया. बट अल्टीमेटली रूल करने के साथ साथ दे वर ऑल्सो मर्चेंट्स. उनको इंडिया पे रूल भी करना था, ओवर पावर करना था. एंड सेकेंड, दे वॉन्टेड टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया. वो एक तरह के मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे. they wanted instant profit. Okay, so what they did, they imposed heavy taxes. They forced farmers to abandon their fields. अब इसमें एक नीचे पोजीशन, जो एक सिचुएशन है जिसमें टॉकिंग क्लाउड में लिखा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. एंड ये फार्मर बोल रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. And against that the Britisher is saying, you are still in errors. If you don't pay next week, I will send you to jail. Arrears means money that is owned and should have been paid earlier. सो ये जो पिक्चर है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश मर्चेंट्स है वो इंडियन फार्मर्स से बहुत सारा टैक्स वसूल करते थे. और जब फार्मर्स टैक्स नहीं दे पाते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे फार्मर का सारा क्रॉप लेके चले जाते थे. तो उस कंडीशन में फार्मर ब्रिटिशर्स को बोलता भी था कि अगर आप मेरा क्रॉप लेके जाओगे तो मैं आपके टैक्सेस कैसे भरूंगा, जब मेरे पास क्रॉप ही नहीं होगी तो मैं उसे बेचूंगा कैसे और आपके टैक्सेस कैसे भरूंगा. तो उसके सामने ब्रिटिशर्स को और डराता है कि तुम्हारा ऑलरेडी पहले का जो पुराना बाकी था वो भी तुमने पे नहीं किया और अभी भी तुम पे नहीं कर रहे हो. अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा. तो अल्टीमेटली डर के मारे जो फार्मर्स थे वो लोग अपने लैंड्स छोड़ने लगे. इनएविटेबली दे हैव टू लीव देयर लैंड्स. उन लोग को, ब्रिटिशर को अपना लैंड देना पड़ा क्योंकि उनके पास पे करने के लिए, टैक्सेस के लिए पैसे नहीं थे.
Now, the fifth picture, still the British invented other methods which gave them more profits. Britishers को और profit पे profit चाहिए था. They wanted more profits. Now see the situation. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. तो ये ब्रिटिशर क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जो भी गुड्स आएगा इंग्लैंड से उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स है दूसरे कंट्री से इंडिया में आते हैं उसे कहते हैं गुड्स को इम्पोर्ट करना, और अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना. ओके, सो व्हेन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड वर इम्पोर्टेड इन इंडिया, ये ब्रिटिशर बोल रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स पे कोई भी ड्यूटी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इम्पोर्ट का, और दूसरे ब्रिटिशर उनका साथ दे रहे कि अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. क्रिपल का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना. ओके, दे स्टार्टेड रूइनिंग इंडियन इंडस्ट्रीज. अब जब फॉरेन के गुड्स इंडिया में बिना टैक्स के आएंगे तो ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो प्राइजेस है उससे सस्ते भाव में लोगों को मिलेंगे. एंड सेकेंडली ब्रिटिशर्स इंडियन को फोर्स करते थे कि आप ये इंपोर्टेड गुड्स ही खरीदो. तो अल्टीमेटली जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो क्रिपल होने लगी, वो डिस्ट्रॉय होने लगी, वो ख़त्म होने लगी. जब कोई प्रोडक्ट्स खरीदेगा ही नहीं तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट कैसे करेगी? प्रॉफिट नहीं करेगी तो हाउ विल इट रन? अल्टीमेटली वो इंडस्ट्रीज़ शट डाउन होने लगी. The sixth picture is inevitably famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the export artisans and their businesses. Now, inevitably famines followed. Famine means scarcity of food. जब लोगों के पास खाना ही नहीं था तो लोग खाना कैसे खाते थे? Inevitably means unavoidably. ब्रिटिशर्स खाना क्रॉप भी लेके जाते थे और लैंड भी ले लेते थे, तो अल्टीमेटली लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था खाने के लिए. तो बिटवीन 1822 टू 1836 फॉर अबाउट 14 ईयर्स लोगों के पास खाने की तकलीफ थी, बहुत बुरी तरह से फेमिन आया था. एंड उसी दौरान 15 लाख इंडियंस 15 लाख इंडियंस दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन. भूख के वजह से इतने सारे इंडियंस की मौत हो गई. बिकॉज ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू टेक ग्रेन्स एंड लैंड बोथ, सो अल्टीमेटली दिस लेड टू फेमिन. द लास्ट पिक्चर इज़ अबाउट आर्टिशंस. द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने एक्सपर्ट आर्टिशंस को और उनके बिजनेस को रूइन कर दिया था. बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या करते थे? दे यूज टू ब्रिंग मशीनरीज फ्रॉम इंग्लैंड. तो जो प्रोडक्ट्स इंडियन आर्टिशंस खुद अपने हाथ से लॉन्ग टाइम में बनाते थे वो सेम प्रोडक्ट मशीन्स में जल्दी बन जाते थे, एट लो कॉस्ट बन जाते थे. तो अल्टीमेटली जो इंडियन आर्टिशंस थे उनका बिजनेस रूइन होने लगा और ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप होने लगी. Students, let's head towards page number 39. Ram Mohan Roy, 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our Asian culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Students, Raja Ram Mohan Roy, he was a learned man from Bengal. He began reforming the Indian society. He was able to realize that there was something wrong with the country. He believed that the Indians must not consider themselves inferior and our Asian culture was great and the people were capable of greater achievements. According to him, to reform the society, the superstitions must be abandoned. It was the root cause of all the problems. Students, Raja Ram Mohan Roy is discussing with other peoples that rivalries between people in India is letting the Britishers to take their advantage. He was well educated and he understood what the problem was. And he used to tell the people that we should not feel ourselves as low and our culture and history is also superb, it is superior. And we are capable of big achievements, greater achievements. And we need to change our thinking of narrow-mindedness. We need to reform our society. Even Raja Ram Mohan Roy has abolished practice of sati and child marriage also. The second picture, he told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Students, once while having a conversation with his wife Uma, Ram Mohan Roy told her that cows are of different colors but the color of their milk is
same. And he also said that different teachers might have different opinions, but the essence of each religion is the same. He was greatly interested in science and modern knowledge, and what he wanted to state that even if the words or the language of all the religions are different, but the meaning is same. We are all humans. Humanity should be at the first place. Third picture. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. The word suspicious means distrustful. Students, Raja Ram Mohan Roy was attracted to science and modern knowledge. And according to him, knowledge should be practical and scientific. He believed that knowledge should have practicality in it, and it should have scientific reasons also. And later on he started writing newspapers and publishing it. But the suspicious, distrustful means ब्रिटिशर्स को भरोसा नहीं था कि what राजा राम मोहन रॉय will write in the newspapers, और शायद वो हमारे खिलाफ लिखे, या लोगों को ये पता चल जाए that हम इंडियंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, we are overpowering the Indians. So just because of this threat, the Britishers they stopped the paper. उन्होंने जो पेपर प्रिंट करते थे राजा राम मोहन रॉय, वो पेपर बंद करवा दिया. Moving on to fourth picture. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subject." Okay. नाउ राजा राम मोहन रॉय उनको ही वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल क्यों है, ऐसा क्या है जिसका वो इतना पावर हमें दिखाते. सो ही क्रॉस द सी, दरिया क्रॉस किया एंड ही वेंट टू इंग्लैंड टू सी. एंड देर ही टोल्ड द ब्रिटिशर्स, वहाँ जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जब वो गए तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि वी एज अ नेशन, यानी हम इंडियंस, हम पूरा नेशन आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं. ओके, बट एज अ रूलर, जैसे कि आप अगर हमें रूल कर रहे हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आर्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्ट्स. अगर हम लोग आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको भी हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, हेडिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 40, नंबर 5, ऑपरेशन 1765 to 1835. Meaning of operation is prolonged, cruel or unjust treatment or exercise of authority. Means किसी पर भी एक लंबे टाइम के लिए उनके ऊपर उनसे क्रूअलिटी से बिहेव करना या उनको अनजस्ट ट्रीटमेंट देना. ओके, अथॉरिटी की तरफ से, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन. बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. Trial in a court का मतलब है when all the facts of a case are heard and a judge or jury makes the final decision about the court case. Means 1880 में ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाला, एक रेगुलेशन 3 निकाला. अकॉर्डिंग टू इट उनको जिस पे भी शक होता था कि ये हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी एक्ट कर रहे हैं, तो उनको वो बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेश किए, कोर्ट में जज के सामने दोनों जो साइड्स है, दोनों साइड्स की बात सुनाए बिना, बाद में पनिशमेंट दी जाती है ना, बट बिना किसी कोर्ट के प्रोसीजर के डायरेक्टली उनको जेल में डाल दिया जाता था, जस्ट सस्पेशन के बेस पे. नेक्स्ट पिक्चर. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस. ब्रिटिशर्स की सैलरी सबसे ज़्यादा थी. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनके प्राइवेट बिजनेस भी थे. दे यूज टू ब्रिंग देयर मटेरियल्स फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट ड्यूटी ब्रिटिशर्स ने लगाई नहीं थी. सो देयर वाज नो इम्पोर्ट ड्यूटी. अकॉर्डिंग टू इट उनका प्रोडक्ट उनको सस्ते में इंडिया में पहुंचा भी देते थे वो, एंड इंडियंस को फोर्स करते थे वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए. सो अल्टीमेटली उनका फॉर्च्यून बहुत रेज हो गया ये प्राइवेट बिजनेस से. ओके, थर्ड पिक्चर. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 तक तो ब्रिटेन से ऑलमोस्ट 7 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट होते थे. ओके, द ब्रिटिश prospered, the companies loot while Indian industries began to die. The British were prospering
वो लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, देवर मर्चेंट्स, वो लोग बहुत सारे बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। एंड इन फ्रंट ऑफ दैट उनके कॉन्ट्ररी, उनके ऑपोजिट इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो डाई हो रही थी। जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे वो कोई खरीद नहीं रहा था, बिकॉज वो ज़्यादा महंगे भी होते थे। ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग पीपल टू बाय द गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अल्टीमेटली वो ठग्स की तरह इंडिया को लूट रहे थे। Next picture, Governor General Bentinck reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. Students, इनिशियली व्हाट यूज टू हैपन कि इंडियंस जो थे वो हर चीज़ हैंडमेड बनाते थे। इवन द कॉटन मिल्स, वीविंग करना, कलर करना, डाई करना प्रोडक्ट को, कपड़ों को, ये सब मैनुअली किया जाता था इंडिया में। बट ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सारा काम मशीन से करवाते थे। सो अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट के सामने इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थे और कम ड्यूरेबल थे, एंड देयर प्रोडक्ट्स वर मोर ड्यूरेबल। सो वॉट बेंटिंक वॉन्ट टू से कि हमने इंडिया को ऑलरेडी इतना परेशान कर दिया है। जब वो रिटर्न गए इंग्लैंड में तब उन्होंने ये बात कही कि जो वीवर्स है वो लोग की जो बोन्स है वो दिखने लगी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंडियंस को खाना मिलता नहीं था, सब कुछ वो ब्रिटिशर्स लेके चले जाते थे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी उन लोगों से काम भी उतना करवाते थे और उनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब बेचने भी नहीं देते थे। तो आर्टिशंस को भी रूइन कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को भी उन लोगों ने रूइन कर दिया और फार्मर्स को भी रूइन कर दिया। So ultimately the meaning of operation on this page, it clearly states that Britishers ने इतना unjust treatment किया prolonged period of time के लिए, इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया इंडियंस को, इतना परेशान किया, अपनी इतनी क्रूअलिटी दिखाई। सो उनका ऑपरेशन जो था इंडियंस पे वो इस पेज पे बहुत क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41, नंबर 6, dissatisfaction, 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. Students, 1835 में एक ब्रिटिश इंग्लिशमैन था मैकॉली, उसने आके क्या कहा कि हमें इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। वी शुड टीच इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज स्टिल देन इंडियंस वर जस्ट नोइंग टू लैंग्वेजेस, पर्शियन एंड संस्कृत। ओके, सो इंडियंस को पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज आती थी, बट ब्रिटिशर्स का सारा काम इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। दे वॉन्टेड इंडियंस टू लर्न इंग्लिश। वो क्यों चाहते थे इंडियंस को इंग्लिश लर्न करने के लिए, वो सेकेंड पिक्चर में दिखता है। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. So what Britishers wanted to do, they wanted to educate Indians in English language just to produce clerks. उनको छोटे छोटे कामों के लिए क्लर्क्स चाहिए थे जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो, जैसे कॉल कर लेना, पेपर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना। सो दिस वर द पेटी जॉब्स, छोटे जॉब्स के लिए उन लोग को इंडियंस की ज़रूरत पड़ती थी और इसके लिए उन लोगों ने इंडियंस को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उनका प्लान ऑपोजिट हो गया। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इंग्लिश सीखा और जो ब्रिटिशर्स है उन लोग के लिए वर्क भी कर रहा था, बट इट ऑल्सो क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो हाईली एजुकेटेड हो गए थे, हाईली डेवलप्ड हो गए थे और लॉजिकली सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स तो कम्प्लीटली हमारा फ़ायदा उठा रहे। वो ब्रिटिशर्स का पूरा प्लान समझ गए थे। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो ये एडुकेटेड इंडियंस थे उन लोगों ने क्या डिस्कस किया एक दूसरे के बीच में, दैट वी शुड एडुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने इंडियन ब्रदर्स को एडुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और सबकी मटेरियल कंडीशंस इम्प्रूव करनी चाहिए, सबके जो हालात है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तब थर्ड इंडियन क्या कहते हैं, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अ ग्रीवियंसेस, यानी उसके लिए हमें हमारे दुख दर्द जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताने पड़ेंगे कि उनकी वजह से हम इंडियंस को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। So incidentally, the education policy also produced a new generation of intellectuals who wanted to uplift their brothers too by educating them. They needed to convey this to the British Parliament. Okay? Now third picture. They cared little about the needs of Indians. अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियंस को रियलाइज़ हो रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस के बारे में बहुत कम सोचते हैं, उनको इंडियंस की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ब्रिटिशर्स ऑन दी अदर हैंड दे हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। आप जो पिक्चर देख सकते हो इंडिया का,
बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया. हमने पहले जो पिक्चर देखा था उसमें येलो पार्ट ज़्यादा था जहाँ पे इंडियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे, एंड पिंक पार्ट जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, दैट वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट. Now the picture is completely opposite, as I said in the starting of the chapter कि आगे जाके पिक्चर completely change हो जाएगा. Now you can see the pink part is more, that means the Britishers were ruling on the most part of India. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. Now here Indians are discussing about the Britishers that they had lost their old jobs and land. Okay, जिन लोग के पास जॉब्स है उनकी जॉब्स चली गई, जिनके पास लैंड थे वो फार्मर्स के लैंड चले गए हैं. ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन पीपल ये बात को लेके वरीड है कि उनके जो किंग्स है वो पूरी तरह से पपेट्स बन गए हैं. उनको ब्रिटिशर्स अपने पपेट की तरह ट्रीट करते हैं. ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन. बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था उनके रिलीजन चेंज करने के लिए. इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग एंड वांटेड टू डू समथिंग. वो यही डिस्कस कर रहे थे कि बात करना बंद करो एंड लेट्स टेक सम एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट पेज नंबर 42, नंबर 7, द स्पार्क्स 1855 to 57. द वर्ड स्पार्क मीन्स चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी जो शुरू हुई 1855 to 57 के दौरान. ओके, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Students, the word Santhal here is a member of a large native group living mainly in eastern India. इंडिया के ईस्ट पार्ट में नेटिव इंडियंस का एक ग्रुप रहता है, तो उन लोग वो दे आर कॉल्ड संथल्स. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाते गए और ये टैक्सेस की वजह से जो पीजेंट्स है, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, उन लोगों को क्या हो रहा था, वो लोग अपने लैंड खोते जा रहे थे, सामने ब्रिटिशर्स लैंड को हड़पते जा रहे थे. सो संथल्स ने क्या किया, दे बिकेम डेस्परेट. वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए और वो लोग अभी मतलब दे वर फाइनल एट दिस कि अभी अब तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही लेना है. सो व्हाट दे डिड, 1855 में वो लोगों ने एक रिबेलियन किया, यानी एक रिवोल्ट किया. रिबेलियन मीन्स रिवोल्ट. एंड दे मैसेक्रेड. मैसेक्रेड का मीनिंग है डेलिबरेटली एंड ब्रूटली किल समवन. तो उन लोगों ने यूरोपियंस के जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे या जो पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स थे जो उन लोगों पे जुल्म कर रहे थे, उन लोगों को जाके डेलिबरेटली संथल्स ने किल किया, बहुत बुरी तरह से किल किया. और जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे उनको भी उन्होंने संथल्स ने किल कर दिया. नेक्स्ट पिक्चर, डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the Angrez. Students, now the Indians are talking about the Britishers. Angrez means Britishers. So what they are discussing, दैट द सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडिया में रह के ब्रिटिश आर्मी में थे, उनको बहुत हाई, बहुत ह्यूज सैलरी मिलती थी, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था सैलरी का. रहने के लिए मेंशन मिलता था, घर मिलता था, मे बी अ काइंड ऑफ अ बंगलो, एंड दे गेट सर्वेंट्स टू. उन लोग को नौकर भी दिए जाते थे कंपनी की तरफ से. एंड उसके ऑपोजिट जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. उनको एक पिटियंस मीन्स टाइनी सैलरी, छोटी सी सैलरी मिलती थी और उनका प्रमोशन भी स्लो होता था. ब्रिटिशर्स का प्रमोशन जल्दी हो जाता था हाई पोस्ट पे, बट जो इंडियन सोल्जर्स थे उनका प्रमोशन स्लो होता था, सैलरी भी कम मिलती थी, उनको परेशान भी उतना किया जाता था. एंड इंडियंस आर डिस्कसिंग कि ये अंग्रेज़ लोग जो है दे आर टेलिंग अस टू क्रॉस द सी. वो लोग फाइट करने के लिए हमें सी क्रॉस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है. और ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमारे इतने एज ओल्ड कस्टम्स को एबॉलिश करने आए? टोपी वाला मीन्स ब्रिटिशर्स. आप पिक्चर में देखोगे कि ब्रिटिशर्स वर मोस्टली वेयरिंग कैप्स. तो द इंडियंस आर रिफरिंग टोपी वाला, जो टोपी वाला रिफ़र किया जा रहा है, दोज आर ब्रिटिशर्स.
सो इंडियंस आर डिस्कसिंग कि ये टोपी वाला कौन है, चलो ये लोग है कौन जो हमारे इतने पुराने कस्टम्स को, हमारे रिलीजन को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें इन अंग्रेज़ को यहाँ से भगा देना चाहिए। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़। Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. Students, Sepoy means Indian soldier who is employed within the European military, okay? And the meaning of adjutant means a military officer who acts as an administrative assistant to a senior officer. Executed means strict action, okay? सो सीपॉय यानी जो इंडियन सोल्जर थे जो ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉयड थे, मंगल पांडे, व्हाट ही डिड, ही अटैक्ट एडजुटेंट, तो मतलब जो हायर रैंक है मिलिट्री ऑफिसर के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे मिलिट्री ऑफिसर है उन पे अटैक किया, उनके रेजिमेंट के उस ऑफिसर पे अटैक किया और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उनके ऑपोजिट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons. Okay? Now what happened next? कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया और रिवोल्ट करने के बदले ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर क्या जुल्म किया, उनके बॉडी से यूनिफॉर्म्स निकलवा दिए, उनको ह्यूमिलिएट किया, उन लोगों की बेइज्जती की एंड उनको आयरन्स में पुट कर दिया, मीन्स उन लोगों को बेड़ियों में बांध दिया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. O proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. Now you can see in the picture. Now three people are talking here. The first one is saying कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, मीन्स वो एक ऐसे सोल्जर से टॉक कर रहे हैं जो ब्राह्मण है बाय रिलीजन और बता रहे हैं कि जो तुम बुलेट यूज़ करने वाले हो उसे ग्रीस किया गया है, वो भी काव और पिग के फैट से। सो व्हाट द ब्राह्मण सोल्जर इज़, उनका रिएक्शन क्या है, व्हाट। एंड द थर्ड पर्सन हु इज़ अ मुस्लिम, वो भी यही बोल रहे हैं कि द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस, मीन्स वाइट मैन ने हमें मिसगाइड किया, मिसलीड किया, हमें धोखा दिया। सो अल्टीमेटली व्हाट इट शोज़ कि जो ब्राह्मण से वो लोग काव की पूजा करते, ओके, काव उनके इसके गॉड की जगह पे, आइडल की जगह, एक एज एन आइडल, एज अ गॉड वो पूजा करते हैं गॉड की, कि गाय हमारी माता है, यू एवरीबडी नो इट, ओके। एंड इवन फॉर मुस्लिम्स द पोक, जो पिग का फैट है वो दे डोंट ईट दैट फैट ऑफ द पिग, ओके। सो फॉर बोथ ब्राह्मण्स एंड फॉर मुस्लिम्स ये जो फैट काव का और पिग का है वो दोनों उनके लिए दे कांट ईट, या उनके टांग पे वो टच भी नहीं कर सकते। तो व्हाट दे से, इसके जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हमें मिसगाइड किया, मिसलीड किया, हमें धोखा दिया। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Now what next happens? अभी इंडियंस ने डिसाइड कर लिया कि what they have to do, they have decided कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल देंगे किसी भी हालत में। they don't want Britishers to stay in India. So as a symbol of message, एक मैसेज के सिंबल की तरह रोटी एक विलेज से दूसरे विलेज रोटी चपाती पास होने लगी ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि एम्परर को, उनके बादशाह को उनकी ज़रूरत है। एंड ऑन द सेकेंड साइड जो विलेज में मैसेज जाता था वो विलेज के हेडमैन सामने जवाब देते कि येस मेरे विलेज के लोग रेडी हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहने के लिए। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. Now जो ब्रिटिश सोल्जर्स की, जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो लोगों में भी लोटस पास ऑन होने लगा, सर्कुलेट होने लगा ये मैसेज के साथ कि इंडियन सोल्जर्स को भी अभी मदद करनी चाहिए मासेस की, और मासेस को इंडियन सोल्जर्स की मदद करनी चाहिए। सो जो मास है, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने जितने भी पैट्रियट्स है, जितने लीडर्स बने थे जो इंडिया के रिवोल्ट में, उन सब को हेल्प करना स्टार्ट किया, उनको शेल्टर देना स्टार्ट किया। पेज 43 नंबर 8 रिवोल्ट 1857। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ द रिवोल्ट 1857। ये वो रिवोल्ट है जो ब्रिटिशर्स के इतने सारे जुल्म के बाद एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ। सबसे पहले कहाँ पे वायलेंट आउटब्रेक हुआ था? मीरठ पे। द सिपॉयज मार्च टू दिल्ली
long live our emperor Bahadur Shah. Now from here you will get to know that उस वक्त that time emperor बहादुर शाह जो एक मुग़ल emperor थे वो इंडिया के emperor थे एंड सारे के सारे जितने भी ये सिपॉइस थे, जितने सोल्जर्स थे, वो सब के सब दिल्ली मार्च के सब दिल्ली गए ताकि वो एम्परर बहादुर शाह को सपोर्ट कर सके जो इंडिया के किंग थे. द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. Now जितने भी इंडिया के लोग थे, सोल्जर्स तो गए थे बहादुर शाह की हेल्प करने के लिए, लेकिन ये जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था. पूरे इंडिया में ये मैसेज फैल गया था कि वी हैव टू अपोज द ब्रिटिशर्स और उनको इंडिया में से भगा देना है. और जो लैंडलॉर्ड थे जिनके लैंड्स ब्रिटिशर्स ने हड़प लिए थे जिस वजह से मतलब जो फार्मर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे जो टैक्स नहीं पे कर पाते थे और उनके जो लैंड्स ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे अपनी जो क्रूअल पॉलिसी है उसके अंडर, उस वजह से देवर सोर, फार्मर्स सोर हो गए थे. मतलब बहुत डिस्ट्रेस थे, बहुत सैड भी थे और बहुत एंग्री भी थे, डिसहार्टन थे. उनको बहुत बुरा भी लगा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लैंड ले लिए. ब्रिटिशर्स पे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था कि उनके लैंड चले गए. तो ये सारी जो फीलिंग्स जो थी लैंडलॉर्ड्स के अंदर, इसी वजह से वो ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए उनको मोटिवेशन मिला. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू. अब क्या कर रहे थे इंडियंस, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि वाइट मैन है उनका रूल एंड करना है और सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए रेडी थे. स्टूडेंट्स, हेडिंग टुवर्ड्स पेज नंबर 44, द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9 picture, the fight for freedom, 1857. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. अभी बेगम हज़रत महल जो लखनऊ में रूल करते थे, इवन ब्रिटिशर्स ने उनका भी किंगडम ले लिया था. शी वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah Faizabad told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज is ruining our land. क्या कहा था फैज़ाबाद के जो मौलवी थे अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को बोला कि पीपल राइज, जागो, तुम लोग जागो और ये अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ जो हमारे लैंड को रूइन कर रहे हैं, हमारे देश की धरती को बर्बाद कर रहे हैं. एंड इवन बेगम हज़रत महल दे जॉइन दी अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर. उन्होंने जो फॉरेनर्स को भगाने के लिए जो राइज खड़ा हुआ था उनमें बेगम हज़रत महल जॉइन हो गई. एंड द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह से पीपल रोज़ हो रहे थे, खड़े हो रहे थे ताकि वो ब्रिटिशर्स को भगा सके. वो ज्वाइन कर रहे थे रिबेलियन में. नेक्स्ट पिक्चर, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. नाउ अजीमुल्ला खान क्या बोलते हैं तात्या तोपे को कि हमें पेशवा नाना साहब को हमारा लीडर बनाना चाहिए हमारे जो इंडिपेंडेंस की वॉर है उसमें. और वो सब अग्री करते हैं और ये सारे के सारे पैट्रियट्स पाउंस करते हैं. पाउंस मीन्स अटैक करते हैं. दे अटैक अपॉन द ब्रिटिशर्स एंड फॉट पिच बैटल्स. पिच बैटल्स का मतलब है अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एक बहुत बड़ी, जैसे जंग कैसी होती है वॉर, वैसा एक बड़ा सा कन्फ्रंटेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में इस तरह का फाइट हुआ था. 80-year-old कुंवर सिंह of Bihar received a bullet in his wrist. Now what this picture shows कि even at the age of 80 इतना इंडियंस परेशान हो गए थे, इतना ब्रिटिशर्स ने ऑप्रेस किया था इन लोगों को कि कोई भी एज के लोग थे, एवरीबडी वॉज टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. तो 80-year-old कुंवर सिंह को बुलेट लग गई थी उनके रिस्ट पे, उनके हथेली पे बुलेट लग गई थी. तो उन्होंने क्या किया, अपना जो हाथ है एल्बो तक कट करके जो रिवर गंगा है उसमें बहा दिया था. और उन्होंने क्या कहा था रिवर गंगा को कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कुंवर सिंह की डेथ हो गई थी. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट डेडिकेशन गिवन टू मदर गंगा बाय कुंवर सिंह. So students, this was the glimpse of the past, or I can say glimpses of the past from our freedom movement, written by S.D. Sawant. Here we end this chapter 3, glimpses of the past. Students, if you like my videos, don't forget to subscribe the channel Asma Babwani. Click on the bell icon to get the latest updates. Like the videos, share the videos, and do comment on all the videos.